Hello, we are given with a question and the question says two parallel plate capacitors A and B have the same separation D equals to this much between the plates. The area is this and this for A and B, right? A slab of dielectric constant K equal to 9 has dimensions such that it exactly fills the spaces between the plate of capacitor B, right? The dielectric slab is placed inside A as shown in figure. A is then charged to potential difference of 110 volt. Calculate the capacitance of A and energy stored in it. The battery is disconnected and the dielectric slab is moved from A. Find the work done by the external agency in removing the slab from A. The third question, the same dielectric is now placed inside B, filling it completely. The two capacitors A and B are then connected. Calculate the energy stored in the system. So these are the processes, three processes, right? So in first, what we are saying that what is the capacitance? Since the capacitance would be equal to epsilon naught, since it has area exactly half to that of this one, the area of A, right? So we can write that epsilon, it fits half area by D. Right, so that is plus the capacitance of this areas, so that is the empty area is A by 2, right, and the distance is D itself, right. Then next, where the dielectric is placed, that has K times epsilon naught A by 2 by D, right. So from here, when we calculate, when we substitute all the values, that is K equal to 9, epsilon equal to 8.85 into 10 to the power minus 12, and this value is given as 8.85 into 10 to the power minus 4, and A by 2, that is area is 0.04 by 2, right. Since it fills this completely, right, it fits the B block completely, so the area would be equal to 0.02 for that one and 0.18 for this one. So that turns out to be 0. Why 0.18? Because the leftover area 0.02 into 9, that is K. Area into K would be equal to A by 2 into K would be equal to 0.18, right. So epsilon naught D, A by 2 is taken common, and we can calculate this value, and this value turns out to be equal to 0.2 into 10 to the power minus 8 Faraday, right. Now the next question we have asked is, we have to find the energy stored in it, right. So the energy stored initially is half CV square. So its capacitance is 0.2 into 10 to the power minus 8 into what is voltage, 110 square. So that turns out to be 1.2 into 10 to the power minus 5 joules, right. The second question asks us if we move that dielectric, right. So the charge is, so what we have to find, the battery is connected and this is second, right. Then dielectric slab is moved from A, find the work done. So since the charge were CV, right, the new capacitance would be equal to epsilon naught A by D, right, correct. So we can do what we can do is, now we can find the work done. Delta W would be equal to Q square by 2C dash minus Q square by 2C, since the voltage would remain the same. So this value turns out to be that this is CV square, right. So we can write that to be equal to, when we substitute all the values, this value turns out to be equal to 4.84 into 10 to the power minus 5 joules. This is the total work done. The third question is, when we connect that to this one,
A to B and B is being filled by the dielectric constant, right? So what we can do is we can find out, right, the capacitance, new capacitance of this. So that would be, so first of all we will calculate CB, right, the capacitance on B. So that would be equal to K epsilon naught A by D, since it fits that area completely, right? So that turns out to be equal to 1.8 into 10 to the power minus 9 farad, and here also it was 0.4 into 10 to the power minus 9 farad C dash, right? So our C dash A, so the total capacitance would be equal to, since they are in parallel condition, 0.4 plus 1.8 into 10 to the power minus 9, right? So that turns out to be 2.2 into 10 to the power minus 9 farad. This is the total capacitance of the system, right? So energy stored would be equal to Q square by 2C, right? So Q is since equal to 2.2 into 10 to the power minus 7 the whole square by the CV, right? The value of CV was equal to 2.2 into 10 to the power minus 7 coulomb, right? So this by 2 into C, that is 2.2 into 10 to the power minus 9. So this turns out to be equal to 1.1 into 10 to the power minus 5 joules. This is the energy, right? This is the work done. This is the energy for the third answer. And this is the energy stored and the capacitance of A. Thank you. A circuit is connected as shown in the figure with the switch S open. हमें इस फिगर में एक सर्किट दिया हुआ है. इस सर्किट को कनेक्ट किया गया है जिसमें ये स्विच S इनिशियली ओपन है. When the switch is closed, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं. The total amount of charge that flows from y to x, तो y से x तक कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमें बताना है. तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है. बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये इनिशियली क्या हो रहा होगा, स्विच ओपन था तो ये सिंपली इस तरीके से कनेक्टेड था. ये 9 वोल्ट की हमारी बैटरी थी और इस तरीके से, और बीच में एक हमारे पास रेसिस्टेंस का नेटवर्क था. ये कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसका, 3 माइक्रोफेराड. इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड. अब आप गौर करो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्विच ओपन है तो इसको मैं कनेक्शन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 9 वोल्ट. और इस वायर में, इस ब्रांचिंग में कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है तो ये इंस्टेंटली ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी. मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज शुरुआत में प्लस क्यू आया, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू. मैं दोनों का चार्ज सेम मान रहा हूँ. ये तो आपको पता ही होगा कि कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो दोनों पे सेम चार्ज होती है. इसलिए मैंने दोनों पे प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया. अब आप गौर से देखो इस प्लेट को और इस प्लेट को, इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा. माइनस क्यू प्लस क्यू 0, इन दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज 0 है. अब सिचुएशन क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो गया और अल्टीमेटली इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो करने लगेगा, तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर. कैसे, ये 3 ओम हमें दिया हुआ है, ये 6 ओम हमें दिया हुआ है, इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा 9 ओम. 9 ओम बाई 9 वोल्ट बाई 9 ओम करेंगे ओम्स लॉ से तो ये वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी. तो ये हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, IR. IR यानी कि 3 वोल्ट, 3 इंटू 1, 3 वोल्ट्स की पोटेंशियल ड्रॉप होगी. मैं लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे
3 वोल्ट्स की पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जर्व होगी, और यहाँ पे IR करेंगे तो 6 × 1 6 वोल्ट्स की पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। अब क्या किया गया कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया गया। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिए तो ये दोनों पॉइंट, ये और ये, सेम पोटेंशियल पे है। अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर जो है वो इनिशियली फुल्ली चार्ज था, इससे करंट तुरंत बस इंस्टेंटली फ्लो करेगा, और उसके बाद ये पूरा सर्किट, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, केवल करंट इसमें फ्लो करेगा। लेकिन अब जब कनेक्ट कर रहे हैं इसको, यानी कि S को क्लोज कर रहे हैं, स्विच S को क्लोज कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि हम लोग को इसके अक्रॉस अब पहले से 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था इस पूरे के अक्रॉस, जिसमें से इसके अक्रॉस कितना का मिल रहा था उसकी खैर कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या होगा कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट्स का हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का होगा, और इस दोनों पॉइंट के बीच का 3 वोल्ट होगा, तो इसके बीच का भी 3 वोल्ट होगा इस वायर में, यहाँ से यहाँ तक का। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब जब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसका चार्ज क्या होगा, आपको पता है Q = CV होता है। तो इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, मैं उसको Q1 मान रहा हूँ। अब Q1 = हो जाएगा 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36 माइक्रो कूलम। ये यूनिट में माइक्रो भी डालना होगा, हमें यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है यहाँ। ये Q1 जो होगा 36 माइक्रो कूलम आएगा, इस पे +36 होगा, इस पे -36 होगा। सिमिलरली इस वाले के लिए मैं Q2 मान रहा हूँ, तो Q2 = हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 माइक्रो कूलम। इस वाले पे प्लेट पे +9 माइक्रो कूलम चार्ज होगा, और इस वाले प्लेट पे -9 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। यहाँ पे +36 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। अब ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन में y है, ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन में x है। अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट को, x पॉइंट्स किस प्लेट से कनेक्टेड है, इस प्लेट से और इस प्लेट से। इसका मतलब टोटल चार्ज पहले कितना था इन दोनों प्लेट का मिला के, -Q + Q 0। अब इस वायर को, स्विच को क्लोज करने के बाद अब कितना चार्ज हो जा रहा है, -9 + 36 यानी कि +27 माइक्रो कूलम इन दोनों प्लेट्स का चार्ज को मिला के होगा, ये स्विच S क्लोज करने के बाद। तो जाहिर सी बात है ये स्विच S क्लोज करने के बाद हुआ है, इसी स्विच से ये 27 -9 + 36 = 27, ये 27 माइक्रो कूलम इसी स्विच से होके फ्लो किया होगा, तभी तो इन दोनों पे ओवरऑल, इस पे -9 और इस पे +36 माइक्रो कूलम हो पाया होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये 27 माइक्रो कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। y से x तक 27 माइक्रो कूलम करंट चार्ज फ्लो करेगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो टाइम कांस्टेंट होगा हमारा इस सर्किट का वो क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ऑफ RC सर्किट जो कि नीचे सभी दिए गए इन माइक्रो सेकेंड। ओके, ये R1 हमारी है, ये R2 है, ये C1 C2 है। ओके, तो ये हमारा पहली सर्किट है, ये दूसरी सर्किट है, ये तीसरी सर्किट है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर RC सर्किट जो होता है, RC सर्किट का हमारा जो इक्विवेलेंट टाउ होता है, टाइम कांस्टेंट, वो क्या होता है R इक्विवेलेंट × C इक्विवेलेंट। ओके, यही होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बात करें, तो इसकी बात हम लोग करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, R इक्विवेलेंट का अगर बात करें तो हम लोग को देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे क्या है, सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो रेसिस्टेंस का जो सीरीज होता है वो क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट = हम लोग क्या लिख कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्टली सम हो जाएगी एक तरह से। ओके, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा R1 + R2 होगा, और R1 R2 कितना दिया हो, 2 और 1 है, यानी 3 ओम कर सकते हैं हम लोग। ओके,
अब सी इक्विवेलेंट का बात करें तो सी इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होती है वो डायरेक्टली सम होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं C1 प्लस C2 जो कि कितना है हमारा 4 और 2 है, यानी 6 माइक्रोफैराड। तो 6 माइक्रोफैराड हो गई। अब हम लोग को टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, कितना हो गया 3 इंटू 6 माइक्रो सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा 18 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, अब इसमें चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड में हमारा क्या कर रहा है, सेकेंड में हमारा जो ये है दोनों, ये क्या है, कैपेसिटर जो है हमारा सीरीज में है और जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हमारा क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और ये हमारा कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 कितना है हमारा दिया हुआ 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं 2/3 इतना ओम। और जो हमारा सी इक्विवेलेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में हमारा क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना इसे, C1 कितना है 4 है और C2 कितना है 2 है, तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड। तो हम लोग अगर टाउ का बात करें तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, तो 2/3 इंटू 4 कितना 3 इक्वल्स टू कर सकते हैं हम लोग 8/9 माइक्रो सेकेंड। ये हमारा क्या था, माइक्रो था, माइक्रो सेकेंड। हमारा सेकेंड भी निकल गई। अब थर्ड का बात हम लोग करते हैं तो थर्ड में हमारा क्या है, ये इक्विवेलेंट में है हमारा, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कैपेसिटर भी पैरेलल में है। तो जो सी इक्विवेलेंट हमारा है वो क्या हो जाएगा, सिंपली सम हो जाएगा C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 था और 2 था, तो हम लोग कितना कर सकते हैं 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड। अब अगर हम लोग इस पैरेलल रेजिस्टेंस का बात करें तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कितना वैल्यू दिया गया है इसका R1 और R2 का हमारा, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल चुका है, कितना है 2/3 ओम है। तो हम लोग टाउ क्या कर सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट 2/3 इंटू सी इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइक्रो सेकेंड। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा 18, फर्स्ट 18 होगा, सेकेंड कितना होगा 8/9 होगा और थर्ड 4 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो राइट ऑप्शन है।